Okay, class. So I hope you all have done the practice. And so far, what we have done it, we have to do the practice of how to collect the input from the user. What are the type of the data we have in a programming? How to use the multiple type of the operators in a programming, writing the code. Then we discuss about the condition formatting, conditional statement, like how to use the if and else if. Then we discuss about the multi-condition statement. We discuss that okay, if you wanted to use the combined statement like both sides, which you're going to explain by and or and not. We also discuss like combined statement and nested statement. Nested if statement is mean that you have to going to use two if instead of writing a else. So why we have to use the two if? The two if always use when we apply the two different object conditions. So today we are going to discuss about lecture 7 and about the loops. So today we have a lecture 7. So lecture 7 and the topic for today's lecture is loop. Okay? So loop, the student who already done the programming, they have a very clear concept about the loop. Loop it's mean that can do something repetitively or do the same task again and again until certain condition met. Okay? So whenever we talk about loops, so it's always like in especially talking about in programming, okay, computer programming. So it's a loop is a programming structure that allow you to repeat a block of code multiple times as long as a specific condition is met. So whenever we talk about what is mean by a certain condition, so there are multiple ways we can explain कि आप कोई डेली बेसिस पे रिपीटिवली टास्क कर रहे हैं. जैसे अगर हम बात करें कि हमारी क्लासेस हैं वो हर ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और हर ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को होनी है. तो एक हमारा रिपीटिव टास्क है कि हमें क्लास लेनी है. ठीक है. सेम थिंग टू ऑटोमेट अ रिपीटिव सिस्टम. अब तक हमने बात की थी कि अगर हमें 3 नंबर्स को ऐड करना है तो हमने 3 अलग वेरिएबल बनाए थे. तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई एक ही वेरिएबल हो और उसमें 3 अलग वैल्यूज हो. कितनी दफ़ा की बात हो, ठीक है. या अगर हम बात करते हैं फ़ैन की, तो वो फ़ैन एक सेम टास्क में चल रहा है. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लूप, सो इसके अंदर हमारे पास इस तरीके से समझाया जाता है कि ये एक पॉइंट है जहाँ से एक साइकिल स्टार्ट हुआ, वो दोबारा का दोबारा साइकिल हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर आया है. और ये कंटिन्यूसली चलता रहे, बार बार चलता रहे, इसको चलाते रहे. तो अब हमारे पास ये काम, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल कोड्स, हम एक ही कोड को इस तरीके से लिखें कि अगर उसमें कोई डेटा, एक ही टाइप का डेटा लेना है. लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की परसेंटेज हमें एंटर करनी है. 50 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, उनकी परसेंटेज ऐड करनी है. तो वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ 50 डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर द स्टूडेंट्स. वी हैव टू क्रिएट अ सिंगल वेरिएबल बाय यूजिंग अ लूप. वी हैव टू डू द एंट्री फॉर 50 स्टूडेंट्स. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट a proper definition, or the easiest definition for loop is, I can say, a loop allow a set of instruction to be repeated multiple times. So this is a very basic and simple definition for the loop. How to understand what is meant by the loop? A loop allows a set of instructions to be repeated multiple times in a program. If we go further and explain about more about the programming as the definition which I explained to you earlier, which is like a loop is a programming structure that allow you to repeat
a block of code multiple times as long as a specific condition match. ठीक है, either we talk about the first line or the second one, it's totally up to you. How good is it? How it is going to help you out? Either you are going with the first definition or the second definition. Second one is more detailed and the first one is the simple and easy to remember. So why we need to use the loop in our programming? As we says, we have to write less amount of the code, and it's always making your system or your code automated repeat request. Like as I says, why loops are useful. It is very basic concept. See, in the start, in the early classes, I mentioned that each and every language having a same concept, but with the different queries. Okay, whenever we talk about the different queries and different statements, it means that the way of the writing a code is little different, but the main concept is always same. Like how to collect the input. Once you receive the data from the user, then how you are going to output the data. How to process the data. So once you are processing the data, then you require a multiple information, like some totaling statement. What is meant by totaling statement? Means adding a two different variables or two data. Subtraction, multiplication, this considers the totaling statements. Incremental, then we have to apply the logic, conditional based logic, which we discussed in the last two classes or three classes about the conditional loops, conditional statements, sorry. Now we have to discuss about the loop. Again, as already I saw that Casey raised the hand. Maybe Casey, after this explanation, you get to know what I am explaining. Okay, whenever we talk about the loops, loop means something which is starting from the same point is going to be end on the same point. Some tasks need to be repetitive all the time without changing anything. Like a fan आपके पास चलता है, उसका काम क्या है? सर्कल में वो घूमता रहेगा. ठीक है, डे नाइट साइकिल चलता रहता है. हम कोई भी काम कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है. अगर आप उससे हटते हो तो बात अलग है, बट अभी कंडीशंस है. हमारी क्लास अगर 1.5 घंटे की है तो वो 1.5 घंटे में चलेगी. तो वो हर एक मिनट के बाद आपका चीज़ें, हर चीज़ की कंडीशन, एक लूप्स हमारे पास गिवन होते हैं. अब सवाल ये कि कुछ कंडीशनल बेस होते हैं और कुछ जो है प्री डिफाइन होते हैं. तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो लूप्स की बात कर रहे हैं. तो लूप्स हमारे पास क्या, एक प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा स्ट्रक्चर है that allow you to repeat a block of code multiple time as long as a specific condition made. Like for example, you are making the data entry for your student record. कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं उसका रिकॉर्ड आपने मैनेज करना है. तो स्टूडेंट का नाम आपने बार बार एंटर करना है सिस्टम पे. अक्सर आप देखते हो कि कहीं अपने एक्सेल में डेटा, तो एक्सेल में हमें सारा डेटा दिखता है, बट जब हम किसी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं, एप्लीकेशंस की बात कर रहे होते हैं, तो वी कांट सी ईच एंड एवरीथिंग, वी जस्ट एंटर द डेटा, बट आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर दैट. ठीक है, सो ओवर हियर इन पाइथन वी हैव टू मेजर लूप्स, while and for to next. ठीक है, we do not discuss over here like about the repeat and all, because हमारे पास while और for to next से हमारा काम हो जाता है, और यहाँ पर मोस्टली पाइथन के अंदर ये दो ही हमारे पास चल रहे होते हैं. ठीक है, कैसी, आई थिंक यू गॉट योर आंसर. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वाज लाइक व्हाई लूप्स आर यूजफुल. नंबर 1, to automate repetitive task. Whenever we have to repeat the same task, then we have to apply the loop. Again, what is mean by the repetitive task? We have to enter the age of 50 students. We have to enter the value, positive value, until any negative value is going to be entered. कि आपने वो वैल्यूज बार बार एंटर करनी है जो कि सेम है, किसी एक चीज़ के लिए सेम है, स्टूडेंट सेम है, हर बच्चे की एज आपने डालनी है, तो आपका कॉमन क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया, बट एज सबकी अलग अलग होगी. तो ये एक रिपीटिव टास्क है. लाइक अगर मेरे पास कोई कोल्ड ड्रिंक है, उसकी मुझे स्टॉक की एंट्री करनी है, वो कोल्ड ड्रिंक एक ही टाइप की है पर बार बार स्टॉक आ रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ मुझे क्वांटिटी एंटर करनी है.
तो जब कभी 50 की क्वांटिटी एंटर करनी है या 50 प्रोडक्ट की प्राइस एंटर करनी है, तो ये क्या है, रिपीटिव टास्क है जो कि हमें करना होता है। नंबर 1 टू ऑटोमेट रिपीटिव टास्क, कि अगर कोई हमारे प्रोग्राम में रिपीटिव टास्क है उसको ये क्या करता है, ऑटोमेट कर देता है। सेकेंड, टू मिनिमाइज कोड डुप्लीकेशन, कि अगर हमें 50 प्रोडक्ट्स की प्राइस लिखनी है तो हमें 50 वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो 50 दफ़ा हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। या किसी एक काम के लिए हो सकता है कि दूसरे काम का और एक काम का कोड जो है बिल्कुल सेम चल रहा हो, तो इट इज़ गोइंग टू रिमूव द डुप्लीकेशन, मिनिमाइज द डुप्लीकेशन। कि कोशिश ये होती है अपने लूप लगाने के बाद कि कोड की डुप्लीकेशन आपकी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, कि एक कोड आपको बार बार लिखने की ज़रूरत ना हो। लास्ट वन, टू हैंडल unknown or dynamic numbers of repetitions। जब हम यहाँ पर लूप लगाते हैं तो उसका काउंटर चलता है, मतलब कितने लूप्स चल गए, कितनी वैल्यूज आपके पास हुई, तो हम उसको यूज़र से ले सकते हैं, यूज़र को बता सकते हैं कि उसने कितनी दफ़ा जो है वो डेटा एंट्री करी थी। फर्दर मोर, कि अगर हम अपनी डेली बेसिस की बात करें कि हमारी डेली बेसिस में ऐसे रिपीटिव टास्क क्या हैं, ठीक है। मोस्टली हम सुबह उठते हैं, आप लोग के पास शायद इतना नहीं होगा, बट आप लोग के पास जो आपका एरिया है वो क्या होगा कि आप गेम्स खेलते हो, ठीक है। तो आपने डेली काम किया, सुबह उठ के हमें गेम खेलने या गेम के इनबॉक्स चेक करने हैं, मेल बॉक्स चेक करनी है, व्हाट्सअप के मैसेज चेक करने हैं। तो हमें कोई काम हो या ना हो, हम सुबह उठते के साथ ही अपने व्हाट्सअप के मैसेज लाजमी चेक करते हैं। अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें हमारे जैसे कि, तो हम अर्ली मॉर्निंग जब ऑफिस आते हैं तो वी हैव टू चेक द आवर ईमेल्स, कि हमें ईमेल्स में क्या आया है, ठीक है। एक तो एग्जांपल ये हमारे पास आती है। अगर मैं थोड़ा सा हाउस होल्ड की तरफ जाएँ, कि जो कि हमारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे काम भी कर रहे होते हैं या जिनको अभी आगे जाए कंप्यूटर से पढ़ना भी है, तो हमारी एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, जैसे लाइक माइक्रोवेव हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गई। तो इनके अंदर भी एक रिपीटिव टास्क होता है कि कितने राउंड्स होंगे, एसी कब तक चलेगा, ठीक है, आपका जो है वो फ्रिज कब तक चलेगा, जब तक बिजली आ रही है तो सब चीज़ें चलेंगी, जब बिजली नहीं होगी तो कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। या वो जो वॉशिंग मशीन है उसने आपके कपड़े वॉश करने हैं तो उसके साइकिल हैं, और अक्सर साइकिल के ऊपर देखो एक ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल भी होता है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, उसमें हम टाइमर सेट करते हैं कि 5 मिनट तक ये साइकिल क्या हो, चले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास गिवन होती है। नाउ हाउ मेनी loops we have in Python, especially in Python, ठीक है। So whenever we talk about Python loop, how many loops we have? As I mentioned, we have 2 loops. Number 1, we have while, ठीक है, वी हैव while loop which is based on a condition। जैसे हमने कंडीशन लगाई थी ना इफ के लिए, while ऑलमोस्ट इफ की तरह ही चलता है, बट इफ क्या है, हमारे पास कंडीशन है। while क्या है, लूप है। कंडीशन का मतलब है क्या, ट्रू एंड फॉल्स। while का मतलब जो है कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो लूप को रोकना है या लूप को चलाना है, तो हमारे पास ये वाला पार्ट इधर आता है। तो इट इज बेस्ड on a condition। Okay, what is a condition? Like for example, user have to prepare a program to enter a positive numbers. If user enter any negative number, then the program will stop or program will be terminated। It means that कि अगर कोई कंडीशन मीट नहीं होती, लाइक ये पॉजिटिव नंबर का आपने प्रोग्राम बनाया है और उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो प्रोग्राम अपनी वैल्यू चेंज नहीं करे, प्रोग्राम क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं कंडीशन के साथ लूप चलाना। हमने इफ़ के अंदर बात की थी कि अगर 80 से अबव हो तो पास हो, अदरवाइज फेल हो। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई बच्चा अगर पास है तो क्या मुझे नेक्स्ट बच्चे के ऊपर जाना है डेटा एंट्री के लिए या नहीं जाना। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो क्या मुझे प्रोग्राम रोकना है, नहीं रोकना। आप कंसीडर यहाँ पर चेंज होंगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर, कि whenever we are explaining if and while, the nature of if and while similar, it seems similar, ठीक है।
but if is a condition, while is a loop. What is mean by condition? To make a decision. What is mean by the loop? The cycle. Okay, if the loop stops, then it's not going to go for the next line. जैसे अगर मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देखो कि एक लाइन जब पूरी हो जाती है तो मैं दूसरी लाइन के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। और कंडीशन पे क्या है कि ये लाइन खत्म होगी तो मुझे दूसरे पे जाना है या नहीं जाना। तो कंडीशन और लूप दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर नहीं हुआ तो देन इट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी टफ टाइम व्हेन यू आर राइटिंग द कोड इन अ प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो हमारे पास पहले है वाइल, जो स्टार्ट होता है, इसका सिंटैक्स वाइल के ऊपर होता है। सेकंड वी हैव फॉर, ठीक है, फॉर लूप। फॉर लूप known as a sequence or a range. Okay, it's based on sequence or range. Example like okay, enter data for 10 students. कि आपने कितने बच्चों का डालना है? 10 बच्चों का डालना है। तो ये 10 हमारे पास क्या हो गई? रेंज हो गई। मीन्स 1 to 10, ठीक है। अब हमारे पास पाइथन में क्या होता है? पाइथन में जो साइकिल स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इफ यू वांटेड टू एंटर देन द फर्स्ट वैल्यू विल बी 0, देन द लास्ट वैल्यू विल बी 9 फॉर द 10th वैल्यू, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। If you count this value 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम पाइथन के अंदर जो उसका सीक्वेंस या काउंटर स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। गॉट इट? इट्स मेक सेंस फॉर एवरीवन? ओके, सो नाउ today's main topic is our loop with the while, ठीक है। We are going to discuss today we are going to discuss while loop, especially about the syntax and the flow, क्या how does it work, ठीक है। Again, I'm repeating before I'm going forward, next topic, the major difference between condition and the loop. Condition means making a decision based on true and false, ठीक है। Loop means a cycle. Whatever you start on starting point, then the same thing should come on the end on the same point. Going to the next line, third line, fourth line, fifth line, it's a loop, ठीक है। Again, the example, okay, whenever we're talking about to enter the data of 10 students, like what is the data? The name of the 10 students. So 10 names is the same variable, but the 10 different values. क्या हमें नाम के वेरिएबल में 10 अलग नाम स्टोर करने हैं, तो ये आपका लूप से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ये लूप चलेगा ताकि हमें 10 अलग वेरिएबल नहीं बनाना पड़े, वेरिएबल एक ही हो और उसके साथ हमें 10th वैल्यू का काम मिल जाए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाइल। So what we are going to discuss in the while loop? We are going to discuss the syntax, how to use loop and flow. Flow means how it works, starting till end. So whenever we talk about the while, so while and then condition, which we have to write, first is going to check, like for example, if I am writing over here, कि इसका syntax हमारे पास क्या है। तो वेरी सिंपल सिंटैक्स हमें हमारे को यहाँ पे मिलता है, जो कि हमारे पास स्मॉल लेटर्स के अंदर क्या है, हमारे पास वाइल है, WILE, ये हमारे पास वाइल सिंटैक्स का आ गया। देन वी हैव टू राइट द कंडीशन, वट एवर द कंडीशन यू हैव टू मेंशन इन द ब्रैकेट, सॉरी अंडरलाइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वाइल हमारा सिंटैक्स हो गया। उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो कंडीशंस आएंगी। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि कोड का ब्लॉक क्या है, कि हमें कोड रोकना है या उसको नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। इफ कंडीशन गेट ट्रू, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से हम ट्रू कंडीशन पे प्रोग्राम भी रोक सकते हैं और फॉल्स कंडीशन पे भी रोक सकते हैं।
जब मैं आपको सवाल सॉल्व करवाऊंगा प्रैक्टिकली, तो हम वहां पर देखेंगे कि ट्रू कंडीशन पे लूप कैसे रुकेगा और फॉल्स कंडीशन पे लूप कैसे रोका जाएगा। ठीक है, सो इट्स लाइक अ कोड ब्लॉक, द लास्ट पार्ट, दिस आर syntax. Now if you go for the second part, so like the flow, ठीक है, how it's work, what is the flow chart, ठीक है। So when we talk about the flow chart and logic, what is mean by the flow chart? Hierarchical operations, कि पहले पे क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा और चौथे पे क्या होगा। ठीक है, सो नंबर वन, ये सबसे पहले क्या चेक करेगा, चेक कंडीशन, कि क्या आपकी कंडीशन उसके हिसाब से मीट करती है या नहीं करती। सेकंड, वैल्यू ट्रू, कि क्या आपकी कंडीशन की वैल्यू ट्रू हुई या नहीं हुई। अगर ट्रू हुई है तो एग्जीक्यूट क्या कर दो, लूप कर दो, कि भाई अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो आपका लूप चलना शुरू हो जाए। अगेन अगर वो ट्रू नहीं हो रही तो क्या करो, आप रिपीट करो, दोबारा से लाइन को पढ़ो। फोर्थ वन, आपकी फॉल्स वैल्यू कब होगी। ठीक है, ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू। फॉल्स वैल्यू का मतलब होता है एग्जिट लूप, कि कब आपका प्रोग्राम चलेगा और कब आपका प्रोग्राम रुकेगा। ठीक है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कि जब कभी भी आप वाइल लगाओगे तो वाइल के अंदर जो ये वाइल वाला पार्ट कंडीशन और ये नीचे वाला पार्ट आएगा पूरा का पूरा, ये चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें क्या लूप को चलाना है या लूप को रोकना है। अगर लूप चल रहा है तो आपको उसको रिपीट करवाना है, कि भाई वो रिपीट होता रहेगा बार 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 बार। सो सेम लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई पॉइंट हमारे पास है तो लूप का मतलब इसके दरमियान में घूमते रहना, ये जब तक घूमता रहेगा जब तक हमें रिक्वायर्ड इसकी। अब जैसे मैंने पेन अपना रिमूव कर दिया तो ये सर्कल बनना रुक गया, तो ये इसकी कंडीशन थी। ठीक है, गॉट इट। So that is for today's theoretical part. I hope you all have opened your PyCharm on your computer system. If it's not, then take out your notepad or notebook or just take the screenshot of the code, and whatever I'm explaining, just make your own note as well. Anyhow, I will always share the recording as well, but making your own notes is always helping you to do the practice. Okay. Okay, this is our first example, and the example is like we are going to print 1 to 5 numbers by using our same things like how to take the input, okay, and then or without taking the input we have to just create a series, okay, how this loop is going to work. Okay, so the first part, first line we have to write for the variable. We created a one counter with the one alphabet or anything whatever you like I can say count, okay, or we can say num, take a number. So number is equal to 1 because it's going to be start from 1 because we have to print 1 to 5. Then this is our loop which we are going to put over here, loop statement. Okay, the first one, while n is less than or equal to 5, ठीक है, semicolon for same to break for the second part. Then output print n, ठीक है, by using the statement of n plus equal to 1. ठीक है, whenever we talk about this statement कि आपके पास जो वैल्यू है वो किस तरीके से चल रही है, let's see over here 1 till 5. Now what is the purpose of this special code? The code for that particular statement, like we have to print the number 1 to 5. So we have created a one equation कि क्योंकि मुझे पहले से पता थी आपको समझाने के लिए, स्टार्ट n with 1, हमने पहले अपनी वैल्यू कहां पर दी, यहां पर दी। आप चाहो तो यूजर से भी मांग सकते हो, बट उसके लिए फिर ये वाला पार्ट आपको उसको देना पड़ेगा कि उसके नंबर्स किस तरीके से, स्टार्टिंग नंबर एंड एंडिंग नंबर। ठीक है, एंड देन एंडिंग और स्टार्टिंग नंबर इज गोइंग टू डिफाइन कि हमें किस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा
और लूप के अंदर हमारी कंडीशन यहां पर लग गई कि I think some sound is coming. Yes, Mohammed. Okay. So again I'm explaining. First our initial value, हमने इसको प्री डिफाइंड एक वैल्यू दी है 1 की. देन वी यूज द while की हमने आगे बात की थी ना कंडीशन एंड ब्लॉक कोड. हमारी कंडीशन क्या है, ये है, ठीक है. प्रिंट करो n को विद n प्लस 1. अगर n क्या है 5 से छोटा है तो ये प्रिंट n किया, बट n के साथ क्या कर दो, यहां पे हमारी कंडीशन क्या लगी हुई है n प्लस 1. तो जब जब इसने n को प्रिंट किया प्लस 1 करते गया. फॉर एग्जाम्पल नाउ वी डोंट वांट टू प्रिंट लाइक 1 to 5, वी हैव टू प्रिंट 1 to 10. हम यहाँ पर आके अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं, 1 to 10 लिखा, और यहां पर भी आके हम क्या करेंगे 10 कर देंगे इसको, ठीक है. नाउ वी आर रनिंग द प्रोग्राम. सी over here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. so see by using a individual number कि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट कर लिखने थे. अब हमने एक छोटा सा कोड लिखा 3 लाइन का, जिसमें 1 से लेकर 10 नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो गए, प्रिंट हो गए. तो जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि इफ यू डू नॉट हैव योर कंप्यूटर बैकग्राउंड डजंट मैटर, आई हैव प्रिपेयर द लेसन्स लाइक दैट वे कि अगर आपने पहले कभी कंप्यूटर नहीं भी पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट्स, ये प्रोग्रामिंग कोड जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगे बिल्कुल जीरो से या बिल्कुल स्क्रैच से प्रोग्रामिंग करते हैं. अब सिंपल हमें 10 नंबर प्रिंट करने थे. हमने एक लॉजिक लगाई कि n क्या होना चाहिए लेस देन 10, और यहाँ पर n के साथ फार्मूला लगा दिया जो हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था प्लस 1 का. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ तो देखो फिर क्या होता है, ठीक है. एक ये अनकाउंटेड नंबर चलने शुरू हो गए, देख रहे हो, अनस्टॉपेबल. ये नंबर स्टॉप ही नहीं होंगे, अब ये चलते जाएंगे माइनस जब तक हमारी वैल्यूज चल रही हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है इससे छोटी हैं. अब इससे हमारा कोई फ्लो है ही नहीं, कोई फायदा हमारा कुछ है नहीं है, बट सारी वैल्यूज क्या है माइनस में चलना शुरू हो गई है, ठीक है. सो इट्स अनस्टॉपेबल काउंटर. अब हम यहाँ पे बोले कि अगर वो इक्वल टू -10 हो, लेट्स सी, इट इज नथिंग, क्योंकि -10 और उसकी कोई लॉजिक उस पर काम ही नहीं करेगी कि हमारी वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है. गॉट इट. सो नॉर्मली हमारा प्रोग्राम था 10 और प्लस इक्वल टू का मतलब है इंक्रीमेंट बाय 1. अगर मैं यहां पे लिखता हूं इंक्रीमेंट बाय 2, लेट्स सी 1 3 5 7 9, हर एक नंबर के बाद उसने क्या किया, दो नंबर्स को एड ऑन कर दिया. 1 + 2 कितने हो गए 3, 3 + 2 5, 5 + 7 5 + 2 7, 7 + 9. अब 9 से ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या थी 10. अगर हम इसको 100 कर दें, सी 100 तक की वैल्यू उसने विद इन अ सेकंड क्या कर दी, प्रिंट कर दी. गॉट इट. So just copy this code, then I will go for the second example. ठीक है, अगर हम यहाँ पर अपने पास एक और फाइल को खोले हमारी 7b को, ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ ताकि आपके दोनों, एक फाइल हमारे पास ये आ गई, दूसरी फाइल हमारे पास यहाँ पर आ गई, क्योंकि मेरे पास फाइलें पहले से बनी हुई थी. तो आप चाहो तो न्यू फाइल बनाकर यहाँ पर उसे नया अपना फाइल का नाम देके, प्रोग्राम का नाम देकर, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो प्रोग्राम आप कर रहे हो, ठीक है, उस प्रोग्राम को रीनेम करना है तो आप यहाँ पर जाके रीनेम करके उस प्रोग्राम का नाम लिख दो ताकि आपको पता चले कि कौन से कोड के अंदर आपका क्या प्रोग्राम है, ठीक है. सो मैं यहाँ पर आकर सेकंड प्रोग्राम की लाइन लिख लेता हूँ कि हमारे पास सेकंड एग्जांपल जो है उसका जो कोड हमारा बन रहा है वो है काउंटडाउन टाइमर. एक काउंटडाउन टाइमर बनाना है जिसके ऊपर हम एक मैसेज दे देंगे
ठीक है, ब्लास्ट करना है या अलार्म करना है, जो भी हमारा काउंटर है, हमने यहाँ पे काउंट का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू कर दिया 10 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमने लिखा वाइल, हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वाइल काउंट अगर 10 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है, तो हमारी कंडीशन क्या है, प्रिंट ब्रैकेट ओपन काउंटर काउंट डाउन, ठीक है, एंड देन जो भी हमारा काउंटर चल रहा है वो काउंट की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। देन क्योंकि काउंटर है और काउंट डाउन आपका रिवर्स में चलेगा, ठीक है, तो काउंट माइनस इक्वल टू 1। अब उस पे क्या कर दो, आखिरी पे हमारे पास प्रिंट कर दो, जो हमारी आखिरी स्टेटमेंट है उस प्रिंट पे कर दो टाइम ओवर। ठीक है, अब हमने काउंटर बनाया है जो 10 वैल्यू के साथ से चलेगा। ठीक है, रन, सी काउंट डाउन 10, काउंट डाउन 9, काउंट डाउन 8, काउंट डाउन 7, काउंट डाउन 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन टाइम ओवर। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बहुत छोटे छोटे कोड लिखे हैं तो डायरेक्ट वैल्यूज आपके पास आ रही है। अब जब हम आगे आगे प्रोग्राम करते जाएंगे, उसमें एनहांसमेंट होती जाएंगी, तो ये आपको सामने दिखेगा काउंटर चलते हुए, वो फिर फंड हैंड हमारे पास होता है जिसमें काउंटर वैल्यू आपको दिखाई जाती है। गॉट इट? सो ये दो क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस आप करके मुझे बताओ कि आपके पास ये दोनों सॉल्व हुए या नहीं हुए। पहला काउंट ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले कोड का, और दूसरे कोड का हमारे पास ये रहा। And the next question is that we have to prepare a program for correct password. ठीक है, अभी फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे, यूजर से कलेक्ट नहीं कर रहे, ताकि यूजर वाले पार्ट के ऊपर अभी हम बताएंगे कि वो इक्वल है या नॉट इक्वल टू है, तो उसके हिसाब से हमें जो है वो एक्सेस उसको देना है। ठीक है, सो हमारा जो कोड है वो है आस्किंग, ठीक है, कीप asking password until correct one। ठीक है, हमें पासवर्ड डालना है, जब तक डालना है जब हमारे पास आएगा। तो अब ये पासवर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा है। तो जब कभी भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहां पर इन्वर्टिस कॉमा जो है वो स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर रहा होता है। इसका मतलब नॉट एम्प्टी या एम्प्टी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि ये एम्प्टी पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास जब आता है कि हम यहाँ पे करते हैं भाई वाइल पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू एक्सप्लेनेशन मार्क एंड देन इक्वल टू। ये जो साइन हमारे पास था वो नॉट इक्वल टू का था, आप ऑपरेटर्स में जाके देख सकते हैं। किसके बराबर नहीं होता, एडमिन के। हम यहाँ पर एक सर्च कर रहे हैं कि भाई पासवर्ड क्या है इसका, इस वक्त एडमिन है जो सही पासवर्ड है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, जो हम यूजर से कलेक्ट करेंगे पासवर्ड, कि भाई यूजर एंटर करे डेटा को, इनपुट एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब हमने पहले पासवर्ड के वेरिएबल को एम्प्टी बनाया, उसके अंदर एक अपना पासवर्ड सेव किया। अब हम यूजर से बोल रहे हैं कि भाई आप अपना एक पासवर्ड एंटर करो, अगर ये दोनों मैच होंगे तो आपको एक्सेप्टेंस आएगी, अदरवाइज एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, एक्सेस आपको ग्रांटेड में नहीं मिलेगा। प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, एक हमारा छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमें ये चेक करना है कि पासवर्ड जो है उसने अपना सही डाला है या नहीं डाला है। रन, एंटर योर पासवर्ड, इफ आई एम राइटिंग काशिफ, सी एंटर योर पासवर्ड अगेन। ये मुझसे जब तक पासवर्ड पूछता रहेगा जब तक मैं इसमें सही पासवर्ड नहीं डालता। लाइक अली, अगेन पासवर्ड, आई सेड पाइथन, सी अगेन एंटर योर पासवर्ड, keep repeating the same thing again and again until it's meet the correct condition। तो करेक्ट कंडीशन हमारी क्या है, एडमिन। तो नहीं चला भाई, एक्सेस ग्रांटेड एडमिन नॉट इक्वल टू, ठीक है, एम्प्टी एंटर एंटर। ठीक है, सो मे बी सम स्पेसिंग प्रॉब्लम,
So right now, as I mentioned admin, it's correct. So admin password I granted. Like for example, running again. So again Ali, continuously admin, access granted. So password, this is for the empty one, first one. Then we have created the length, lower और उसका जो चक्कर हमारे पास आता है पार्ट, हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं. यहाँ पर ये एंट्री हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. ठीक है, एडमिन एंड द पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट एंड सो ऑन, एंड देन इफ द पासवर्ड मैचेस देन एक्सेस ग्रांटेड. अब सवाल देखो, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्सेस ग्रांटेड का और ये कंटिन्यूसली प्रोग्राम चल रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है. अब आगे जाके हम सवालों में ये करेंगे कितनी दफा ये पासवर्ड को एक्सेप्ट करेगा और कितनी दफा पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास है कि हम इसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके अंदर और किन चीजों को चेंज कर सकते हैं. सो एम्प्टी फॉर द स्ट्रिंग, देन व्हाइल लोअर, ये वही वाला पार्ट है जो हमने पहले भी किया था कि जितनी भी जो भी लैंग्वेज हमारी यहाँ पर लिखी जाएगी उसको सब ये क्या करेगा, चाहे कैपिटल हो कुछ भी हो, उसको लोअर के अंदर ये कंसीडर करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल एडमिन, see access granted. So this is a small program for keep asking for the password until the user enter the correct password. यहाँ पर अभी हमने प्रीडिफाइन लिखा है, आगे जाके कुछ चीजें ऐसी होंगी जब आप यूजर से पूछेंगे और वहां बताएंगे कि भाई ये दोनों पासवर्ड अगर सेम होते हैं तो एक्सेस ग्रांटेड करो, अदरवाइज एक्सेस ग्रांटेड नहीं होगा. ठीक है, इस कोड को आप करो ताकि फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाऊं. ठीक है, हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं. हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोड टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स. क्या हमें शुरू के 5 नंबर्स पे या हम इसको 10 नंबर कर सकते हैं कि वो 10 नंबर को आपस में ऐड ऑन करें और ऐड ऑन करके जो है वो हमें क्या करे, आउटपुट करके दिखाए. तो सेम थिंग, हमने एक n के नाम से जो एक वेरिएबल ले लिया और जिसकी फर्स्ट वैल्यू जो है हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दी, 1 कर दी. आप इसको 1 करोगे तो 1 to 5 करना पड़ेगा. अगर आप इसको 0 करते हो तो 1 to 0 to 4 करना पड़ेगा 5 वैल्यूज के लिए. ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो हम सिर्फ एक वेरिएबल नहीं बनाएंगे, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे टोटल का या सम के नाम से. ठीक है, जो भी आपको सही लगे, जिसके अंदर सारी वैल्यूज स्टोर होंगी. अब सवाल ये आता है कि सर कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी. अभी जब मैं कोड कंप्लीट करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये हमने एक और वेरिएबल क्यों बनाया. व्हाइल n, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. अगर ये कंडीशन ट्रू है कि अगर n की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है तो आप क्या करो कि टोटल के अंदर एक कर दो इंक्रीमेंट इक्वल टू बाय 1, कि जो भी आपका इंक्रीमेंट है, जो वेरिएबल आपके पास चल रहा है वो क्या हो जाए, उसके अंदर 1 हो जाए. सेकेंड पार्ट n के साथ, n में भी क्या कर दो, प्लस 1 इक्वल टू 1 करके काउंटर को क्या कर दो, 1 कर दो. अब इसमें क्या होगा, देखो पहली वैल्यू क्या है इसकी, 0. 0 में प्लस 1 करोगे तो फिर वैल्यू क्या बन जाएगी, 1. जब वो प्रोग्राम सेकंड दफा चलेगा तो 1 की वैल्यू में 1 प्लस करो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास इस तरीके से दिखा सकता है. अब हम आखिरी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज, ठीक है, कॉमा टोटल. अभी टोटल हमारे पास यहाँ पर आ गया क्योंकि हमने यहीं पर सारी वैल्यूज को क्या कर दिया था, एड ऑन किया था. अब हम इसको रन करते हैं. सी सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 5. अब आप बोलोगे सर पहले तो हम 5 तो काउंटर के साथ भी कर सकते थे, इस वाली वैल्यू के साथ भी आता. अब देखो जब इसके साथ अगर हम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये आंसर हटा देते हैं और ये वाली वैल्यू हम नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा. क्या प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट हमें करवाना पड़ेगा n को. ठीक है, प्रिंट हमें क्या करना पड़ेगा, n, जो कि हमारी पास वैल्यू. हमारा सवाल तो ये था ही नहीं. हमारा सवाल क्या था कि फर्स्ट 5 नंबर को क्या करना है, एड ऑन करना है. तो फर्स्ट 5 नंबर को एड ऑन करना है तो इसलिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल क्या पता चला, 5 का, कि भाई 5 वैल्यूज है, उन सबको क्या करना है, सम करना है. ये दूसरा वेरिएबल था. तो n हमारा नंबर्स के लिए हो गया, टोटल हमारा किसके लिए हो गया, सम के लिए हो गया, जो हम सम की बात कर रहे हैं. हमने लिखा व्हाइल n, पहली कंडीशन हमारी क्या है कि अगर n की वैल्यू 5 से कम है तो आप क्या अप्लाई करो, ये अप्लाई करो. ठीक है, इसको अप्लाई करने के बाद आप क्या करो, जब ये कंडीशन हो जाए तो आउटपुट करो. जो हमारा प्रॉम्प्ट था वो प्रॉम्प्ट कहता सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज, एंड टोटल हमारे पास यहां से आ गया. ठीक है, गॉट इट. जब अगर हम इसको 10 करना है, फॉर एग्जांपल आप बोलते हो फर्स्ट 10 नंबर्स, हमने 10 लिखा और यहां पर भी आगे क्या कर दिया हमने,
10 कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 10 को रन किया, ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास आ गया 10 कि 10 से छोटी वैल्यू है तो फार्मूले के हिसाब से वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब आपने यहाँ पर अगर यूजर से लेना तो दोनों वैल्यू यहाँ पे यूजर से चेंज करवानी पड़ेगी। गॉट इट? इज इट क्लियर फॉर टुडेज क्लास?